Namaste all, this is JV and Anjali Parekh from Department of Fashion Design and Fine Arts. In the previous lecture, we have discussed about the fundamental of design subject and we have covered the topic of Unit 1 which was shape and line. Now the third topic that we are going to do and continue is color. Color basically is an element of design and any designer who wants to work really good, and there are designers that are working good but are still not satisfied with the work that they do. So that is because that the depth or the basics of the subjects they have not studied carefully, and just in case they have studied also, they have just learned the first and second line or the main topics and have not gone through the examples and depth of the topic, which is also very important. Now if we talk about the color theory, it is basically the colors that we see that helps in making a product or object or any design or a garment in a very good or beautiful way. Basically, if we talk about color theory, there is a term like art of permutation. Now, what do you understand by the word permutation? It is basically joining of an element in a way that it creates something good and it creates something in a lot of number. Art of permutation refers to, for example, there are 7 notes in music, which is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, sa. Now these notes, what does they do? आप इनसे बहुत सारे अलग अलग एलिमेंट्स बहुत सारे अलग अलग सॉन्ग्स को प्रिपेयर कर सकते हैं, बहुत सारे अलग अलग मेलोडीज को प्रिपेयर कर सकते हैं. There are 7 notes in the music and they can create many melodies all together. Similarly, there are 4 components in elements of design which when created, which are placed together and used in a way that it enhances the particular object or the product that you're trying to make. Maybe it can be a screen or a product or any garment, anything like that. Coming to the second part, color theory is a fundamental concept in the art world. It helps artists understand the principle of color interaction and how to use them effectively in their work. In this presentation, we will explore how to use the color theory and how it can be applied to make it creating a visually aesthetic design. Now, before we start it, we need to understand what is color. Color theory हम लोग बाद में पढ़ेंगे, पहले हमारे को ये पता होना चाहिए कि color basically क्या होता है. Anything that you think about is a color. Any light, color क्या होता है? Basically एक light जो कि reflect हो रही है, कोई particular object है, इस पे hit हुआ और जो reflection आपको दिख रहा है, जो भी reflection आपको दिख रहा है is basically a color. एक light जो कि पास हुआ किसी ऑब्जेक्ट से हिट हुआ, उसका रिफ्लेक्शन जो है दैट इज बेसिकली कलर. अब क्या होता है कि अपने को कुछ कलर्स क्यों दिखते हैं, मतलब बेसिकली लाइट तो वाइट ही है, प्लेन ही है, बट जब वो किसी ऑब्जेक्ट से हिट कर रहे हैं तो अलग अलग कलर्स फॉर्म हो रहे हैं. विबग्योर का हमने नाम सुना है, रेनबो का, जिसमें वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज, रेड, येलो, ये सब कलर्स होते हैं. ये बेसिकली लाइट है, कहीं यहाँ पर आकर हिट हो रही है और रिफ्लेक्शन में हमारे को बहुत अलग अलग कलर्स आकर दिख रहे हैं. अगर पहले का टाइम का बात करें तो हमारे पास ब्लैक एंड वाइट सारी चीज़ें थी, बिकॉज जो हमारा रिफ्लेक्शन है उसको हम उस टाइम तक समझ नहीं पाए थे कि हम उसको स्क्रीन पे कैसे उतार सकते हैं. धीरे धीरे न्यूटन ने और भी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने डिस्कवर किया कलर थ्योरी को और वो समझ पाए कि कलर्स को किस तरीके से दिखाया जा सकता है या फिर दुनिया में जो भी कलर्स हैं वो किस वजह से दिख रहे हैं. नाउ एवरी कलर हैज़ अ डिफरेंट एसोसिएशन विद एवरीथिंग. इट कुड बी साइकोलॉजिकल और फिजिकल. साइकोलॉजिकल की बात करें तो साइकोलॉजिकल क्या होता है? साइक क्या होती है? बेसिकली माइंड सेट किसी भी चीज का.
तो जब हम साइक की बात कर रहे हैं, साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं, एनीथिंग दैट इज देयर इन आवर माइंड। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल, it is anything that we can touch or feel or we can which is a tangible product, that is called physical। तो आपके जो कलर की एसोसिएशन है वो बेसिकली हर चीज के साथ अलग अलग हो सकती है। जब हम कलर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये स्टडी करेंगे कि कलर्स क्या है, उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, एंड हाउ दे इंटरैक्ट विद वन अनदर। It helps the artist to create the art which is appealing and harmonious। जब भी हम कोई कलर की बात करते हैं या फिर हम किसी भी एलिमेंट की बात कर रहे हैं, हमारा अल्टीमेट गोल ये है कि हम कोई भी चीज़ को बेटर दिखाना चाह रहे हैं। बहुत सारे डिज़ाइनर्स को बाकी सारे एलिमेंट्स या सब कुछ पता है, बट इफ़ यू डू नॉट चूज द राइट कलर, आपकी डिज़ाइन कितनी भी अच्छी हो दुनिया में वो परफेक्ट नहीं लग पाएगी। एंड एट द वेरी सेम टाइम हो सकता है कई बार आपकी डिज़ाइन थोड़ा कम हो, इतना ज़्यादा आपने डिज़ाइन नहीं करी, पर तो भी आपका डिज़ाइन कलर की वजह से बहुत निकल कर आ जाए। ये क्या है, विजुअली अपीलिंग चीज़ें हैं। विजुअली आप जो देख रहे हैं, सोच रहे हैं, आपके ब्रेन में क्या स्टिमुलाई जनरेट हो रहा है, उसके बेसिस पे सारी चीज़ें होती है। जब हम कलर थ्योरी की बात कर रहे हैं तो कुछ कलर्स हैं जो कि प्राइमरी कलर्स होते हैं। अब you will see here the primary colors, they are basically the building blocks of a color theory, they are the first step जो भी colors में होते हैं। प्राइमरी कलर्स की जब हम बात करते हैं तो ये वो कलर्स हैं जो कि प्योर होते हैं। These are the pure colors। ये कलर्स किसी भी दूसरे कलर से मिलकर नहीं बनते हैं, ये अपने आप में खुद से इजाद हुए कलर्स हैं, जो कि है आपका रेड, ब्लू और येलो। ये जो आप पिक्चर्स देख रहे हैं बेसिकली इन्हीं कलर्स को डिनोट कर रहा है, प्राइमरी कलर्स को। प्राइमरी कलर्स वो हैं जो किसी और से मिलकर नहीं बनते, दे आर प्योर इन फॉर्म, दे आर नॉट क्रिएटेड बाय मिक्सिंग एनी कलर्स, बट दे कैन क्रिएट मोर कलर्स बिकॉज ऑफ देम सेल्व्स। सो दीज आर द बेसिक प्राइमरी कलर्स, रेड, येलो एंड ब्लू। पर अब जब हम लोग कलर्स की बात करते हैं तो हमने यूजुअली RGB सुना है, RGB सुना है, बट आप तो बोल रहे हो कि प्राइमरी कलर्स RYB है, RYB, ऐसा क्यों? जब भी हम देखो कलर जो होते हैं वो दो तरह से होते हैं, एक होता है पिगमेंट कलर्स और एक होता है आपका लाइट वाला कलर। पिगमेंट कलर की जब हम लोग बात करते हैं तो ऐसे कलर्स जो कि किसी सरफेस पर है एंड दे आर परमानेंट, दे विल नॉट गेट डिमिनिश्ड जब तक आप उसको पूरी कोशिश नहीं करते उसको हटाने की, जब तक आप उसकी लेयर पे दूसरा कलर नहीं कर देते तब तक आप पिगमेंट कलर्स को नहीं हटा सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बेसिकली ये वॉल दिख रही है या फिर कोई भी वॉल दिख रही है अपने आसपास में, जो भी उसका कलर है उस पर अगर मान लो येलो हो रखा है, ऑफ वाइट हो रखा है, पिंक हो रखा है, ब्लू हो रखा है, जो भी कलर हो रखा है वो एक पिगमेंट कलर है। क्यों? क्योंकि वो एक सरफेस पे परमानेंट कलर करा हुआ है। अब वो कलर तब ही चेंज होगा जब आप दूसरा कलर उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हो या फिर आप पूरी तरीके से उसको लाइटन या हटाने की कोशिश कर रहे हैं, तब जाकर ही वो कलर रिमूव होगा। सिमिलरली एक होता है सरफेस कलर, सॉरी लाइट कलर्स। लाइट क्या करता है बेसिकली, कोई भी ऐसे कलर की लाइट जो कि आपके फेस पर आ रही है और उससे आपका कलर चेंज हो रहा है। अगर आपने देखा हो रील्स वगैरह में यूजुअली क्या होता है, वाइट लाइट यूज करते हैं या फिर येलो लाइट, ऑरेंज लाइट, ये सब यूज करते हैं। उससे क्या हो रहा है, परमानेंटली मेरे फेस पे वो कलर नहीं रहेगा, बट लाइट की वजह से, क्योंकि लाइट ही येलो कलर की है। आप मान लो कोई भी आपने प्रॉपर ट्यूबलाइट कर दी, उसके आगे आपने अगर रेड कलर की पॉलीथीन बैग को रख दिया तो जो लाइट निकलेगा वो रेड कलर का निकलेगा, बट क्या वो परमानेंट है? नहीं। अगर आप उसको हटा दोगे उसी टाइम पर तो वो कलर वहां से चला जाएगा। लाइट के थ्रू आपके कलर्स अलग अलग तरह से दिखते हैं। आप सनलाइट में जाइए, आपका फेस कलर अलग लगेगा। आप ये मैनमेड लाइट में जाइए, उसमें आपका कलर अलग लगेगा। तो नेचुरल लाइट और यहाँ
आर्टिफिशियल लाइट में भी थोड़ा डिफरेंस होता है, उसकी वजह से आप किसी भी चीज़ का कलर को चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो आप मोती सन्स के बारे में देख सकते हैं। मोती सन्स क्या है? एक ज्वेलरी शॉप है। अगर आप यूजुअली इसको जयपुर रीजन में देखें तो वहाँ पर आपको पता चलेगा। वो 3 फ्लोर्स का एक बिल्डिंग है, जिसमें अगर हम लोग फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो फर्स्ट फ्लोर पे वो सिल्वर ज्वेलरी प्रोडक्ट रखते हैं। तो क्योंकि उनको सिल्वर ज्वेलरी प्रोडक्ट को ज़्यादा एनहांस करना है, तो उनकी जो लाइटिंग होती है वो यूजुअली वाइट कलर में होती है, कि उनका प्रोडक्ट अच्छे से तब दिखेगा जब वाइट, क्योंकि सिल्वर का कलर भी तो ऑलमोस्ट उसी के आसपास है, वाइटिश के आसपास में, तो इसलिए लाइट जो यूज़ होती है वो वाइट यूज़ होती है। सिमिलरली अगर आप सेकेंड फ्लोर पर जाकर देखें तो वो जो चीज़ सेल कर रहे हैं वहाँ पर, तो वो है गोल्डन आइटम्स। कोई भी प्रोडक्ट जो गोल्ड के हैं। गोल्ड यूजुअली कौन से कलर का हम लोग एसोसिएट करते हैं? येलो या फिर ऑकर कलर। तो वहाँ की जो लाइटिंग है वो आपको येलो कलर के आसपास में दिखेगी। उससे क्या है, प्रोडक्ट आप तभी तो बोलते हैं ना कि यार ये दुकान पे तो बहुत अच्छा लग रहा है, अभी बाहर जाकर देखना पड़ेगा। चेक हमेशा करते हो, बिकॉज क्योंकि आप डेली लाइफ में जब उस प्रोडक्ट को यूज करोगे तो आप वो वाली लाइटिंग तो लेकर नहीं आने वाले। आप ऑलमोस्ट जो नेचुरल सोर्स है लाइट का, आप उसी में जाएंगे या फिर अलग अलग लाइट सोर्सेज में जाएंगे। तो यूजुअली ये आपका कंपैरिजन दिमाग में चल जाता है, पर एक्चुअल में हो क्या रहा है वहाँ पर? वो उस प्रोडक्ट को और एनहांस करने के लिए सिमिलर कलर की लाइट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, जिससे कि आपका प्रोडक्ट और एनहांस लगे। सिमिलरली वहाँ पे थर्ड फ्लोर पे जो है वो है डायमंड्स का। तो वहाँ पर जो लाइट आपको मिलेगी वो आइस ब्लू कलर की मिलेगी, बिकॉज डायमंड्स हैव अ कलर दैट इज रिलेटेड टू आइस ब्लू शेड। सो उसको और एनहांस करने के लिए वो लोग वो पर्टिकुलर लाइट का यूज करते हैं। प्राइमरी कलर की जब हमने बात कर ली तो वैसे ही हम लोग सेकेंडरी कलर्स की बात करेंगे। प्राइमरी कलर्स को मिलाकर जो कलर बनता है वो है आपका सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स आर क्रिएटेड बाय मिक्सिंग 2 primary colors together. The secondary colors are green, orange and purple. यहाँ आपको कलर दिख रहा है ग्रीन, ऑरेंज एंड पर्पल। ये आपके प्राइमरी कलर्स को जब हमने मिक्स किया उसके बाद ये कलर्स हमारे डिराइव हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम लोग टर्शियरी कलर्स की बात करें तो प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर जो कलर बनता है वो है टर्शियरी कलर्स। कलर्स का जो एसोसिएशन है या फिर अपनी लाइफ में, डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कभी भी किसी प्रोडक्ट के बारे में सोचेंगे तो पहला थॉट जो आपको आएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलती हूँ स्ट्रॉबेरी इज अ प्रोडक्ट, तो पहली चीज़ आपके दिमाग में जो आई वो आई स्ट्रॉबेरी का पिंक कलर, क्योंकि वो चीज़ हमारे माइंड में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस है कि वी कैन रिकग्नाइज दैट प्रोडक्ट थ्रू द कलर। तो कलर्स डेफिनेटली प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। इट डिपेंड्स आप किस ओकेजन पे, किस जगह पे उसको यूटिलाइज करने वाले हैं। आपका बॉडी का क्या कलर टोन है, आपका स्किन का क्या कलर टोन है, आईज का, हेयर्स का क्या कलर टोन है, उसके हिसाब से अगर आप गारमेंट्स डिसाइड करते हैं तो डेफिनेटली जो भी चीज़ दूसरी तरह से लगने वाली थी वो और बेटर लगेगी। वो डिपेंड करता है कि अगर आपने खुद की स्किन कलर, बॉडी कलर, हेयर कलर्स को एनालाइज कर लिया। तो ये हम लोग नेक्स्ट वाले सेशन में करेंगे जो कि आपका कलर एनालिसिस के बाद में आता है। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कलर्स में टिंट, शेड और टोन आता है। इसके अलावा सैचुरेशन और ब्राइटनेस। यूजुअली अगर आप लोग फोन्स वगैरह यूज करते हैं तो अपन जैसे ही एक पिक्चर क्लिक करते हैं तो उसमें ब्राइटनेस, सैचुरेशन, ह्यू और ऐसी कई सारी चीज़ें हम लोग देखते हैं। बेसिकली आपने एक पिक्चर लिया, अब उसमें अगर आप ब्राइटनेस को इंक्रीज कर देंगे तो वाइट कलर का मिक्स ज़्यादा होगा और वो चीज़ लाइट दिखेगी। सिमिलरली अगर आप ब्राइटनेस का परसेंटेज जितना जितना डिक्रीज करते जाते हो वो उतना ही डार्क दिखेगा। एट द वेरी सेम टाइम अगर सैचुरेशन पॉइंट को अगर आप इंक्रीज कर देते हैं तो आपको उतना डार्कर कलर दिखेगा, और सैचुरेशन पॉइंट को आप जितना लाइट करते जाते हैं, मतलब जितना कम करते जाते हैं, उतना आपको डार्कर शेड वहाँ पे दिखेगा। तो ये बेसिकली किसी भी प्रोडक्ट की लाइट को चेंज करने में काम करता है, या फिर उसकी जो एक्चुअल इंटेंसिटी है प्रोडक्ट की कलर की, उसको चेंज करने में हेल्प करता है। 3 तरह के अगर हमारे यहाँ पे कलर की प्रॉपर्टीज हैं, टिंट, शेड और टोन।
टिंट की अगर बात करें तो कोई भी प्योर कलर जिसमें आपने वाइट कलर को ऐड कर दिया वो टिंट्स में चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमने प्योर कलर लिया रेड और हमने उसमें ब्लैक कलर का मिक्स किया तो वो आपका शेड में चला जाएगा। एट द वेरी सेम टाइम अगर किसी भी रेड कलर में आपने ग्रे टोन को मिक्स किया तो फिर वो टोन में चला जाएगा। आपका मेन कलर यहाँ पर रेड ही चल रहा है, पर रेड में आप क्या मिक्स कर रहे हैं उसके बेसिस पे अलग अलग कलर्स निकल कर आ रहे हैं। ये कुछ कलर्स होते हैं जो कि कूल अंडरटोन के लिए है, कुछ है वार्म अंडरटोन के लिए, सिमिलरली बाकी कलर्स भी हैं। इसीलिए जो बोलते हैं कलर्स आर इन अ वेरी इनफाइनाइट नंबर। आप कलर्स को ये नहीं मान के चल सकते कि 5 या 10 या 20 या 50 होते हैं। यूजुअली गर्ल्स को बोला जाता है ना कि यार इतने कलर्स के नाम तुम्हारे को कैसे याद होते हैं, क्योंकि इतने कलर्स एग्जिस्ट करते हैं तो याद तो होना ही है। एंड यूजुअली कलर्स का जो मेन यूटिलाइजेशन है वो गर्ल्स अच्छे से कर सकती हैं। दैट इज वाई यू नो देयर वी जस्ट थिंक कि इतने सारे कलर्स कैसे याद हैं। ये भी एक पिक्चर है जो कि ब्लू कलर की टिंट, शेड और टोन को डिपिक्ट कर रहा है। Now, if we are coming to the next part, there is a color wheel. It is a visual representation of the relationship between colors. कि colors का एक दूसरे से क्या relation है, कौन सा color किसके साथ कैसे अच्छा लग सकता है। बहुत सारी color theories हैं, बहुत सारी color properties हैं, जिनसे ये color wheel के अंदर हमारे को पता चलेगा। It is useful tool for artists to use when selecting colors for their artwork. मान लीजिए कि मैं एक पेंटिंग बना रही हूँ, अब उसमें मैंने फेस का कलर कुछ किया है और अपर बॉडी का कलर कुछ और किया है। मैं कलर व्हील से अगर रेफर करके दूसरा कलर को चूज करूँ तो वो मेरे को डेफिनेटली हेल्प करेगा और ज़्यादा बेटर लगाने में। बात ये है कि आप कौन सी कलर स्कीम चूज करने वाले हैं। कलर स्कीम्स की जब हम लोग बात करते हैं तो वो अलग अलग तरह की होती है, जिसमें एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक, ये बहुत सारे अलग अलग तरह की कलर स्कीम हम लोग यूजुअली देखते हैं। कलर हार्मनी, इट इज द यूज ऑफ कलर कॉम्बिनेशन दैट आर विजुअली अपीलिंग एंड प्लीजिंग टू द आई। इट इन्वॉल्व्स सेलेक्टिंग द कलर्स दैट आर वर्क वेल टुगेदर एंड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं, स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स भी होते हैं। ये आपको बेसिकली जो आपका कलर व्हील है इसके थ्रू पता चलेगा। इसमें आपको प्योर कलर्स भी दिखेंगे जो कि आपका जैसे रेड, येलो और आपका ग्रीन कलर भी है। तो ये प्राइमरी कलर्स है, सॉरी रेड, येलो एंड ब्लू, ग्रीन नहीं, रेड, येलो एंड ब्लू, इनसे आपके बाकी कलर्स बन रहे हैं सेकेंडरी, टर्शरी, और उसी से ही आपकी कलर स्कीम निकल कर आ रही है, जैसे कि स्प्लिट कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, एनालॉगस, मोनोक्रोमैटिक एंड वेरियस अदर्स। आपके क्या प्रोडक्ट आप लोग डेवलप करने वाले हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप क्या कलर स्कीम को चूज कर रहे हैं। जब हम लोग कलर की बात कर रहे हैं साथ में, तो आपका प्रोडक्ट की क्या क्वालिटी है उसके बेसिस पे भी आप कलर को चूज करोगे। अगर हम लोग बात करें किसी भी देयर आर वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। अगर मैं कभी भी मिंट खाना चाहती हूँ तो मेरा एसोसिएशन क्या है, मिंट में क्यों खा रही हूँ, बिकॉज आई वॉन्ट माई ब्रेथ टू फील वेरी लाइटर एंड कूल। तो जो आप यूजुअली मिंट से रिलेटेड प्रोडक्ट्स देखेंगे ना, उसमें जो पैकेट का कलर है वो हमेशा वाइट में या फिर आइस ब्लू कलर में दिखेगा आपको यूजुअली। एंड एट द वेरी सेम टाइम अगर आप मसाले की बात करें जो कि यूज करे जाते हैं जैसे मिर्ची या ऐसा कुछ, तो MDH का जो आप पैकेजिंग देखेंगे उसमें यूजुअली डार्कर कलर्स की यूज होती है, डार्कर कलर एज ए वार्म कलर्स। तो कलर का एसोसिएशन हम लोग इन चीजों के थ्रू देख सकते हैं। देयर आर वार्म कलर्स एंड कूल कलर्स। हमारा क्या प्रोडक्ट है, हम किसको डिलीवर कर रहे हैं, कौन हमारा टारगेट मार्केट है, उसके बेसिस पे आप फाइनलाइज करेंगे कि कौन सा कलर हम लोग चूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी the color theory analysis and how and what to wear by a person। जो भी आपका क्लाइंट है उसके लिए हम लोग क्या बनाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा जो हम लोग कर रहे हैं वो हम यहाँ पे जैसे आप पिक्चर्स देख रहे हो, अलग अलग कलर्स को हम लोग डिस्क्राइब करेंगे इमोशंस के बेसिस पे
कि क्या क्या कलर एसोसिएट करता है अपने साथ में और कौन सी जगह पे हम लोग क्या चूज कर सकते हैं. दिस इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.